timeless echoes, the Ramayan and today's youth. Honorable judges, respected teachers, and my dear friends, Pranam. I am Ramgulam Yashwini, a student of grade 11 at the Queen Elizabeth College. And today, I stand before you with a heart full of reverence and a voice echoing with ancient wisdom as I unfold the timeless glory of the Ramayan and its profound relevance for us, the youth of today. The Ramayan is not just an epic, it is a lamp in the darkness, a compass in confusion, and a friend in times of moral struggle. I know you all may wonder, why should we, the Netflix generation, care about a tale that's over 2 millennia old? Well, that's because, my dear friends, the Ramayan is not just a story of the past. It is a presence. It is a guide for the future. Lord Ram, a portrait of principles. In the heart of this sacred text stands Lord Ram, not just a prince, but a symbol of truth, sacrifice, and dharma. When he willingly chose exile over the throne to uphold his father's word, he showed us that duty is much more greater than desire. In a world full of shortcuts and selfish gain, Lord Ram reminds us, do what is right and not what is easy. Dharma protects those who protect it. This principle is as relevant today as it was in Treta Yuga. Let Lord Ram inspire us to be the individuals of honor over ambition, to be the individuals of character over convenience. Devi Sita, strength in silence. And then there is Devi Sita, not just a queen, but a goddess of grace and grit. When she walked the forest in silence, when she bore her trials with dignity, she whispered to every girl and boy, true strength does not shout, it shines. Devi Sita teaches us that a strong soul doesn't always raise its voice, it rises in resilience. In Devi Sita, we find the perfect blend of courage and calm, a beacon for modern youth, navigating identity, respect, and relationships. Hanuman, devotion in action. And who can forget the mighty Hanuman, the youthful fire of spirit, devotion, and strength? His loyalty to Lord Ram was not just noble, it was unshakable. He leapt across oceans, lifted mountains, humbled demons, and even burned down Lanka, not for glory, not for grace, but all in the name of love. Where there is faith, there is fearlessness. In Hanuman, we find our role model, focused yet humble, strong yet spiritual. In this age of self-vice and self-promotion, let us be the Hanuman who serves silently, who loves deeply, and who acts bravely. Every character is a lesson. Let us be like Lord Ram, unwavering in values. Let us be like Devi Sita, serene and self-respecting. Let us be like Lakshman, focused and disciplined. Yet, let us be aware of becoming like Ramayan, intelligent, yes, yet destroyed by ego. They are not just characters. They are the choices that we, the youth of today, make every day. Why the Ramayan still matters today? Today, the youth face immense challenges like drastic climatic changes, serious mental health issues, digital addiction, peer influence, bullying. However, these solutions lie surprisingly in this sacred epic, the Ramayan. The Ramayan teaches us to stand for truth in a world of manipulation, to walk with humility in times of pride, and to always choose compassion over cruelty even when it's hard. The Ramayan is not a relic, my dear friends. It is a river of love, a river of wisdom that flows through the hearts and souls of Bharat and beyond. Let us not just read it. Let us live it, my dear friends. Let us not just admire its heroes. Let us become them. Let its verses echo in our actions and not in temples and textbooks. Jai Siya Ram. May the courage of Ram, the grace of Sita, and the devotion of Hanuman awaken in the hearts of each and every one of us. Thank you. Pranam. यहाँ उपस्थित सभी लोग को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। क्वीन एलिजाबेथ कॉलेज की ग्रेड 11 से मैं रामगुलाम पुष्टि आज आपको रामायण के बारे में बताऊंगी और कैसे इस महाकाव्य ने हम युवाओं के जीवन में अनेक बदलाव लाए। रामायण से हमें अनेक जीवन की सीख प्राप्त होती है, परंतु यहाँ सीख सबसे पहले युवावस्था से ही शुरू होती है। क्यों? क्योंकि यही वह दौर है जब जीवन की आधारशिला रखी जाती है। रामायण
केवल एक प्राचीन ग्रंथ नहीं बल्कि एक जीवन मार्गदर्शिका भी है जो हम युवाओं को यहाँ समझाती है कि युवा न केवल भविष्य के नेता नहीं बल्कि वर्तमान में धर्म तथा सत्य के रक्षक भी हैं। रामायण में ऐसे कई पात्र हैं जो हमें अनेक मूल्य सिखाते हैं। सर्वप्रथम हमारे श्री राम, जो मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम से भी जाने जाते हैं और वे आज भी युवावस्था का आदर्श हैं। क्यों? क्योंकि भगवान राम ने युवावस्था में ही धर्म, धैर्य, सत्य का परिचय दिया। उन्होंने बिना किसी संकोच या विरोध के वनवास स्वीकार किया और यहाँ दर्शाता है कि एक युवा केवल संयम और जिम्मेदारी से बड़े से भी बड़े कार्य कर सकता है। जैसे कि उन्होंने कहा था, कर्तव्य पालन में संकोच ना करो क्योंकि यही जीवन की सच्ची पूंजी है। दूसरे स्थान पर आते हैं श्री लक्ष्मण, जो निष्ठा और भाईचारा का प्रतीक है। मेरी नानी हमेशा कहती हैं कि अगर भाई बनना है तो लक्ष्मण की तरह बनो। मैं सोचती थी क्यों? आज समझ में आया क्यों। क्योंकि लक्ष्मण जी ने बिना किसी संकोच के उनके साहस, ऊर्जा और दृढ़ता के साथ राम के साथ हमेशा खड़े हुए। उनका कथन यह है कि भाई के कष्ट में भागीदार बनना ही सच्ची मित्रता है। तीसरे स्थान पर आते हैं सीता मैया, जो धैर्य और आत्मबल की मिसाल है। आज भी वह नारियों के लिए एक मिसाल थी और हमेशा रहेगी। सीता जी ने विपरीत परिस्थितियों में भी धर्म का पालन नहीं छोड़ा। उनका साहस और धैर्य हमें सिखाते हैं कि धर्म का मार्ग कठिन है, परंतु यही हमें उज्जवल बनाता है। चौथे स्थान पर आते हैं हनुमान जी, जो भक्ति, शक्ति तथा बुद्धि का संगम है। हनुमान जी का जीवन दर्शाता यह है कि यदि मन में विश्वास और समर्पण हो तो कोई भी कठिनाई बाधा में नहीं बन सकती। हनुमान जी की भक्ति हम युवा शक्ति के लिए एक प्रेरक उदाहरण है। रामायण में आज भी युवाओं को धर्म के रक्षक, समाज के सुधारक और अधर्म के नाशक के रूप में दिखाया गया है। यह संदेश है कि यदि युवा अपनी शक्ति को सही दिशा में लगाए तो वो समाज को ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। अतः आज के युवाओं के लिए रामायण केवल एक प्राचीन ग्रंथ नहीं बल्कि प्रेरणा का स्रोत भी है, जो हम सबको समझाती है कि भक्ति, शक्ति, नेतृत्व, त्याग और विवेक की ज्योत हम युवा ही जलाते हैं। जीवन में अगर कुछ बनना हो, कुछ प्राप्त करना हो तो हमेशा अपने मन की सुनो, और अगर मन भी जवाब ना दे तो अपनी आंखें बंद करके उनका नाम लो जो राम नाम से जाने जाते हैं। तो आइए हमारे साथ श्री राम, लक्ष्मण, सीता और हनुमान जी के मूल्य को अपने जीवन में अपनाकर समाज में सकारात्मक शक्ति लाए। बोलो सियावर रामचंद्र की। आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, मान्यवर अतिथिगण, आदरणीय शिक्षकगण और मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को मेरा हार्दिक प्रणाम। मैं क्वीन एलिजाबेथ कॉलेज की बावन श्रद्धा आज आपके समक्ष एक ऐसे विषय पर अपनी बात रखने आई हूँ जो हम अक्सर एक पुरानी कथा, धार्मिक ग्रंथ या बुजुर्गों की बातें समझकर नज़रअंदाज कर देते हैं। वह है रामायण। पर साथियों, रामायण केवल एक ग्रंथ नहीं बल्कि जीवन जीने का मार्गदर्शन है। वह हमें सिखाती है कि धर्म, प्रेम, त्याग और न्याय की महत्ता आज भी वैसे ही है जैसी सदियों पहले थी। आज के युग में युवा तेजी से भागती दुनिया में अपनी पहचान बनाने में व्यस्त हैं। करियर, प्रतियोगिता, रिश्ते और सोशल मीडिया की भाग दौड़ में हम कई बार अपनी असली पहचान, अपने मूल्यों और नैतिकता से दूर हो जाते हैं। ऐसे में रामायण एक मार्गदर्शक की तरह सामने आती है जो हमें सिखाती है कि सिर्फ तेज़ी से भागना ही नहीं बल्कि सही मार्ग पर चलना भी आवश्यक है। रामायण के अनेक प्रसंगों में से चित्रकूट मिलन का प्रसंग अत्यंत मार्मिक और प्रेरणादायक है। भरत, जिन्होंने अपने माँ कैकेयी की साजिश के बावजूद श्री राम
भरत जिन्होंने अपनी माँ कैकेयी की साजिश के बावजूद राज्य और सत्ता का त्याग कर दिया और श्री राम से मिलने चले गए। उन्होंने अपने भाई से कहा, यह राज्य आपका है, मैं तो केवल आपका सेवक हूँ। यह प्रेम, त्याग और नेतृत्व का उदाहरण है। वहीं राम ने भी अपने पिता के प्रति वचनबद्ध रहकर वनवास को स्वीकार किया, यह सिखाते हुए कि धर्म आसानी नहीं बल्कि सत्य और न्यायपूर्ण होना चाहिए। आज के युग में जब हर कोई कहता है अपने हित में सोचो, तब रामायण हमें सिखाती है कि सच, न्याय और धर्म का पालन करना ही असली मार्ग है। जब दोस्ती भी केवल सोशल मीडिया के लाइक्स और फॉलोअर्स तक ही सीमित हो गए हैं, तब राम और भरत की मित्रता हमें यह याद दिलाती है कि सच्चा रिश्ता दिल से दिल तक जुड़ा होता है। भरत का नेतृत्व केवल पद या सत्ता पाने का साधन नहीं था, बल्कि सेवा और समर्पण का उदाहरण था। वे हमें यह बताते हैं कि नेतृत्व चरित्र और दिल से आता है, ना कि पद या सत्ता से। रामायण हमें यह भी सिखाती है कि बड़ा बनने के लिए विनम्र होना पड़ता है और जीतने के लिए पहले खुद को समझना और सुधारना पड़ता है। ये शिक्षाएं आज की युवाओं के लिए अत्यंत प्रासंगिक हैं, क्योंकि ये हमें एक सशक्त, शांत और समर्पित इंसान बनाती हैं। धन्यवाद। जय श्री राम। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। मेरा नाम दुमिष्टा लक्ष्मी शिवादन है। मैं कक्षा 13 की छात्रा क्वीन एलिजाबेथ कॉलेज से हूँ। आज मैं आपके समक्ष युवाओं के लिए रामायण की प्रासंगिकता पर चर्चा करना चाहूँगी। आदरणीय मंच, सम्मानित श्रोता और मेरे युवा साथियों, जब हम रामायण का नाम सुनते हैं तब हमारे मन में एक पौराणिक कथा उभरती है। राजमहल, राक्षस, धनुष यज्ञ और वनवास। परंतु क्या आपने कभी सोचा है कि रामायण केवल बीते युग की बात नहीं है, बल्कि वह आज के दौर में भी एक जीवंत मार्गदर्शन बन सकती है। आज का युवा तेज है, जिज्ञासु है, सपनों से भरा है, परंतु उसके सामने है असंख्य विकल्प और उतनी ही भटकाने वाली राहें। ऐसे में रामायण एक दिशा सूचक यंत्र की भांति है जो हमें सही दिशा दिखाती है। कैसे? श्री राम केवल राजा नहीं, विचारधारा हैं। श्री राम का जीवन ही एक संदेश है कि नैतिकता और कर्तव्य का पालन हर परिस्थिति में संभव है। श्री राम ने राजगद्दी को त्याग कर शासन के आदर्शों का पालन किया। आज जब हर कोई सफलता की दौड़ में है, श्री राम सिखाते हैं कि सच्चाई और त्याग की राह भले ही कठिन हो, मगर वह स्थायी होती है। सीता माता सम्मान, साहस और आत्मबल की प्रतिमा है। सीता माता का जीवन आज की हर युवती के लिए एक आदर्श है, एक प्रेरणा है। उनका जीवन सिखाता है कि संकोच में नहीं, सम्मान में है स्त्री की सच्ची शक्ति। उन्होंने विपरीत परिस्थितियों में भी नारी गरिमा को बनाए रखा। हनुमान जी युवा शक्ति के लिए एक आदर्श रूप हैं। हनुमान जी शक्ति के प्रतीक हैं, परंतु वह शक्ति अहंकार से नहीं, भक्ति से उपजी। हनुमान जी सिखाते हैं कि यदि तुम्हारे पास लक्ष्य और श्रद्धा हो तो कोई पर्वत भारी नहीं। लक्ष्मण जी ने सत्ता नहीं, सेवा को चुना। वे सिखाते हैं कि संयम और धैर्य केवल रिश्तों में नहीं बल्कि जीवन की हर दिशा में आवश्यक है। राम राज्य एक आदर्श समाज का सपना। क्या हम आजकल ऐसा समाज नहीं चाहते? प्रिय साथियों, रामायण केवल बीते युग की गाथा नहीं है, वह एक दर्पण है जिसमें हम अपने चरित्र को निखार सकते हैं। वह एक सोपान है जिससे हम अपने भविष्य को ऊंचाइयों तक पहुंचा सकते हैं। यदि आज का युवा रामायण से केवल एक बात सीख ले तो यह होनी चाहिए: सफलता के पूर्व संकल्प और अधिकार के पूर्व उत्तरदायित्व अत्यंत आवश्यक हैं।
आपके ध्यान के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। मेरा नाम श्रेया गुप्ता है। मैं क्वीन एलिजाबेथ कॉलेज की 10वीं कक्षा की छात्रा हूँ। आज मैं आप सभी के समक्ष एक अत्यंत महत्वपूर्ण और प्रेरणादायक विषय पर बात करने के लिए उपस्थित हूँ। नवजवानों के लिए रामायण की प्रासंगिकता। आज का युग तेज़ रफ्तार का है, तकनीक, सोशल मीडिया और तात्कालीन सुखों का। लेकिन अक्सर इसी दौर में हम यह भूल जाते हैं कि जीवन की असली पूंजी क्या है। संयम, सच्चाई, करुणा और कर्तव्य। ऐसे में रामायण कोई धार्मिक ग्रंथ नहीं, अपितु हर युवक के जीवन में एक मार्गदर्शक बनकर सामने आती है। कहा जाता है जैसे तीर को लक्ष्य चाहिए वैसे युवा को दिशा, और रामायण वही दिशा प्रदान करती है। नवजवानों के लिए रामायण की अनेक प्रासंगिकताएं हैं। प्रथम, आत्मनियंत्रण और धैर्य। भगवान राम ने वनवास, सीताहरण और युद्ध जैसे कठिन समय में भी अपना संयम नहीं खोया। उन्होंने हर निर्णय में मर्यादा और धैर्य को प्राथमिकता दी। आज के युवा जब सोशल मीडिया की चमक या तात्कालीन सफलता की दौड़ में उलझ जाते हैं, तब भगवान राम का संयम हमें सिखाता है कि सच्चा नायक वही है जो अपनी इच्छाओं पर विजय पाले। दूसरा, नेतृत्व और सहयोग। भगवान राम ने लड़ाई कभी अकेले नहीं लड़ी, उन्होंने सभी को साथ लिया, चाहे वह वानर सेना हो या विभीषण। उन्होंने सबकी शक्तियों को पहचाना और सम्मान दिया। यह सिखाता है कि अगर युवा नेतृत्व के साथ चले तो वह एक सशक्त समाज बना सकता है। तीसरा, नारी सम्मान। रामायण में भगवान राम और माता सीता के संबंध में केवल प्रेम ही नहीं, अपितु मर्यादा और धैर्य भी दिखता है। यह नवजवानों को यह सिखाता है कि नारी के प्रति संवेदनशीलता, सम्मान और सम्मान ही समाज की असली पहचान है। चौथा, राष्ट्र प्रेम और सेवा। हनुमान की निष्ठा, लक्ष्मण का त्याग और राम का कर्तव्य बोध यह बताते हैं कि व्यक्तिगत स्वार्थ से ऊपर उठकर ही देश और समाज के लिए जीना ही सच्चा जीवन है। यह बात आज के नौजवानों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। और पांचवा, आत्म परिवर्तन की शक्ति। विभीषण की कहानी हमें यह बताती है कि गलत माहौल में रहकर भी हम सही राह चुन सकते हैं। आज के युवा जब भ्रम और सोशल मीडिया की चमक में उलझ जाते हैं, तब रामायण हमें यह सशक्त करती है, हमें आश्वासन देती है कि गलत माहौल में रहकर भी हम सही राह चुन सकते हैं और बदलाव की शुरुआत कभी भी की जा सकती है। अंत में मैं यह कहना चाहती हूँ कि सच्चा युवक वही है जो अपने धर्म और कर्तव्य का पालन करते हुए समाज के प्रति अपने जिम्मेदारियों का निर्वहन करता हो। रामायण कोई पुरानी कथा नहीं, अपितु एक जीवंत चेतना है जो हर युवा को खुद से जोड़ती है, उसको भीतर से सशक्त बनाती है और जीवन जीने के लिए प्रेरित करती है। आप सभी के ध्यान के लिए धन्यवाद। जय श्री राम। आप सभी को मेरा सादर नमन। मेरा नाम खुशी दयाल है, मैं कक्षा 10 की छात्रा हूँ और आज मैं रामायण के इन मूल्यों पर बात करना चाहती हूँ जो हमारे समाज को और भी बेहतर बना सकता है और हमारे युवा को सही दिशा पर ला सकते हैं। आजकल कई लोग मानते हैं कि रामायण सिर्फ एक पुरानी और धार्मिक ग्रंथ है, परंतु मेरा सवाल है, क्या आज भी रामायण प्रासंगिक है? मेरा उत्तर है हाँ, और आज के समय में पहले से कई ज़्यादा। जब श्री राम को पता चला कि उन्हें 14 वर्ष का वनवास जाना था, तब उन्होंने बिना किसी प्रश्न किए अपने पिता का वचन निभाया। आज अगर हर युवा इसी तरह अपने कर्तव्य को निभाएगा तो हमारा समाज और भी बेहतर बन जाएगा। श्री राम ने हमेशा सत्य का साथ दिया, चाहे कठिनाइयाँ कितनी भी हों, उन्होंने कभी भी असत्य का साथ नहीं दिया। आज इस युग में जहाँ झूठ बोलना एक आम बात बन गई है, अगर हर युवा, हर व्यक्ति सत्य का साथ दे तो समाज में सच्चाई और भी बढ़ जाएगा। सीता माता केवल नारी नहीं बल्कि श्रद्धा और सम्मान की प्रतीक भी थी। आज हर लड़की को सीता माता जैसे सम्मान मिलने चाहिए।
समाज तभी आगे बढ़ेगा जब हर नारी, हर लड़की को सीता माता जैसे वही सम्मान और श्रद्धा प्राप्त होगी। हनुमान जी ने हमें यह भी सिखाया कि अगर आप अपने लक्ष्य पर भरोसा रखें तो जीवन में कोई भी काम सफल हो जाएगा। रामायण हमें यह भी सिखाती है कि रामायण एक GPS जैसा है जो हमें सम्मान, नारी रक्षा एवं श्रद्धा जैसे मूल्यों को सिखाती है। रामायण केवल एक पुरानी ग्रंथ नहीं बल्कि एक जीवन आईना है जो हमें दिखाता है कि हम क्या हैं और हम क्या बन सकते हैं। आइए हम एक साथ एक ऐसे मॉरिशस की कल्पना करें जहाँ हर घर में श्री राम हो, हर दिल में सीता माता की श्रद्धा हो, हर व्यवहार में हनुमान जी का साहस हो एवं हर व्यक्ति में श्रद्धा हो। आपके ध्यान के लिए धन्यवाद। श्री राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। आदरणीय निर्णायकगण, श्रद्धेय गुरुजन और मेरे प्यारे साथियों, हम आज एक ऐसे युग में जी रहे हैं जहां भौतिक विकास के शिखर पर खड़े होकर भी नैतिकता रसातल में जा चुकी है। आज का समाज संवेदन शून्य हो चुका है, घर घर में कलह है और भाई आपस में ज़मीन जायदाद के लिए शत्रु बन चुके हैं। माता पिता वृद्धाश्रम भेजे जा रहे हैं। विवाह पवित्र बंधन नहीं समझौता बन चुका है। युवाओं के जीवन में नशा, अश्लीलता, मानसिक रोग और आत्महत्या की घटनाएं बढ़ रही हैं। इन सभी समस्याओं का एक ही कारण है, श्री राम को भूल जाना, धर्म को त्याग देना। भगवान श्री राम केवल एक ऐतिहासिक व्यक्तित्व नहीं, साक्षात धर्म स्वरूप, मर्यादा के मूर्तिमान और त्रेता युग के विष्णु अवतार हैं। जब हम उनके जीवन को देखते हैं तो केवल हमें उपदेश नहीं मिलता है, इन समस्याओं का समाधान भी मिलता है। उन्होंने अपने आचरण से दिखाया कि धर्म की रक्षा के लिए सुख और राज्य को भी त्यागा जा सकता है। जब उनके पिता ने उनको वनवास का आदेश दिया तो प्रभु श्री राम ने बिना एक शब्द बोले विनम्रता से आज्ञा स्वीकार की। क्या आज कोई पुत्र माता पिता की आज्ञा को सरलता से इस भाव से स्वीकार करेगा? राम के चरणों में दया भी है। शबरी के झूठी बेड़ों को प्रेम से स्वीकार करना, जटायु जैसे पक्षी को पुत्रवत गले लगाना, गिलहरी से छोटे प्रयास को भी महत्व देना, यह है अहिंसा, करुणा और जीव मात्र में ईश्वर को देखने की दृष्टि। और आज हम स्वाद के लिए मासूम पशुओं की हत्या करते हैं। क्या यह दया है? क्या यही है संस्कृति जिसने राम ने हमें सिखाया? श्री राम सत्य की मूर्ति थे। उन्होंने वचन की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व त्याग दिया। आज माता पिता की बात टालना आधुनिकता कहलाती है, संबंधों में झूठ बोलना चतुराई कहलाता है। पर श्री राम कहते हैं धर्म वही है जो त्याग मांगता है, सत्य वह है जो कठिन है पर टिके। श्री राम ने जीवन भर संयम और अपरिग्रह का आचरण किया। जब उन्हें राज्य मिलने वाला था तो उन्होंने न लाभ किया न कुंठा। उन्होंने वन को स्वीकार किया बिना किसी शिकायत के। रावण जिसने सीता माता को बलात्कार लिया वह ज्ञानी था, शक्तिशाली था, पर वह धर्महीन था। आज भी हम रावण की ही तरह लालच, कामना, क्रोध और अहंकार से अंधे हो चुके हैं। भाई भाई को मार रहा है, पत्नियां छोड़ दी जा रही हैं, घर टूट रहे हैं क्योंकि राम का आदर्श त्याग दिया गया है। अब बात आती है इंद्रिय संयम की। भगवान श्री राम ने अपने जीवन में मर्यादा और पवित्रता का पालन इस प्रकार किया कि 14 वर्षों तक अपनी पत्नी सीता से दूर रहकर भी उनकी निष्ठा डगमगाई नहीं। लक्ष्मण जी ने कभी सीता माँ का मुख तक नहीं देखा। ऐसा संयम, ऐसा आदर्श क्या आज हम में है? आज का युवा नशा, व्यभिचार, अश्लीलता और आत्मघाती जीवन शैली में उलझा हुआ है। क्यों?
क्योंकि उसने राम को त्याग दिया है। और जब जीवन में अहंकार होता है तब केवल एक दीपक मार्ग दिखा सकता है, और वह दीपक हैं श्री हनुमान जी। वे केवल बलवान नहीं, श्रद्धा और भक्ति के महासागर है। मनोजवम मारुततुल्यवेगम जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। समुद्र लांघा, पर्वत उठाया, संजीवनी लाई, पर श्री प्रभु श्री राम को दिया। विद्यवान गुणयति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। आज के युवा को हनुमान से सीखना चाहिए कि शक्ति में नम्रता, विद्या में भक्ति और पराक्रम में सेवा होनी चाहिए। लेकिन कितनी विडंबना है, मॉरिशस में हनुमान चौतरे हैं, हनुमान की मूर्तियां हैं, पर उनके गुणों को अपनाने वाला बहुत कुछ हैं। पर आज अधिकांश लोग भक्तों की तरह दिखते हैं पर आचरण रावण जैसे करते हैं। और वही रावण के कुल में ही विभीषण जैसे भक्त हैं, जिन्होंने अपने कुल संबंध दर को त्याग कर भगवान श्री राम के शरण दिया। तो अंत में मैं आप सभी से विनती करती हूँ, रामायण को केवल एक पौराणिक ग्रंथ ना माने और उसे रोज़ अपने जीवन में अपनाएं। जय श्री राम। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। मेरा नाम रोहन बुबिचन है और मैं सेंट स्प्रिंग कॉलेज का एक छात्र हूँ। मैं ग्रेड 10 में पढ़ता हूँ और 16 साल का हूँ। मैं आज आपके समक्ष नौजवानों के लिए रामायण की प्रासंगिकता पर एक भाषण प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। रामायण केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, उसकी कथा प्राचीन है और यह आधुनिक युग में भी प्रेरणा देने और गूगल मैप्स की तरह हमारा मार्गदर्शन करने में सहायक है। बस इंटरनेट नहीं, श्रद्धा चाहिए। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को हम लोग यूं ही ऐसे नहीं बुलाते। उन्होंने यह नाम कमाया है, पर कैसे? धर्म और कर्तव्य का पालन करने से। पिताजी के वचन को सर्वोपरि मानकर उन्होंने अपना सिंहासन त्याग दिया और दिखाया कि पुत्र का परम कर्तव्य होता है माता पिता का सम्मान करना, और यह आदर भाव उनके गुरुओं के प्रति भी दृष्टिगोचर है। और तो और श्री राम रावण पर विजय पाकर अपने पति धर्म भी दिखाते। वे हमें नेतृत्व शक्ति, सत्संगति, संयम, धीरज और अच्छाई की शिक्षा देते हैं। हनुमान जी ने राम जी में इस युद्ध का साथ देकर सहनशीलता, समर्पण, नैतिकता और मेहनत जैसे गुण दिखाए जो इस तनावपूर्ण जीवन में आवश्यक हैं। लेकिन इससे भी परम धर्म होता है राज्य की मर्यादा की सुरक्षा। अयोध्या लौटने के बाद उन्होंने राज्य की जिम्मेदारियों को पूरी निष्ठा से निभाई और अपनी पत्नी से भी खुद से अलग किया। अतः रामायण हमें यह सिखाता है कि हमारे रिश्ते कैसे होना चाहिए। चाहे हम पुत्र, पति, पिता, भाई या समाज के आम नागरिक हैं, हमें हर स्थिति में धर्म और कर्तव्य का पालन करना चाहिए। ये सीख पीढ़ी अंतराल जैसी समस्या को भी काफ़ी हद तक सुलझा सकती है। आपको पता है, मेरे दिमाग में अभी कुछ आया है। यदि मेरे स्कूल के मित्र आज के राम होते और उनके माता पिता उनको कुछ कह दिए या उन्हें कुछ करने के लिए मजबूर करते, तो पक्का व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम पर ऐसा स्टेटस लगाते, मेरा जीवन मेरे नियम, न सहूँ कोई भी सितम, मेरी मर्जी मेरे कदम। या अगर वे वन में जाते तो फोटो पोस्ट करते। यहीं पर तो हम नौजवान मार खाते हैं। आज के व्यस्त जीवन में हम बहुत कुछ पोस्ट करना चाहते हैं और लोगों को दिखाना चाहते हैं, लेकिन हमें राम जी की तरह होना है।
ना प्रशंसा का भूखा, ना दिखावे की लालच, बस शांत और सच्चे मन और शक्ति से हर कठिनाई का सामना करना। मंगल मूल विरंची भगवाना, साधक सिद्ध सुलभ सुखदामा, भजत कृपा करी राम अनुजाई, भव भय बिनस राम गुण गाई, सियावर रामचंद्र की जय। अर्थात राम नाम और उनके सिद्धांतों को अपने जीवन में लागू करने से हमें सुख प्राप्त होती है और हम सफल होती हैं। तो निसंदेह रामायण आज के युवकों के लिए प्रासंगिक है। आपके ध्यान के लिए धन्यवाद। जय श्री राम। नमस्ते, मेरा नाम ध्रुव मुरारजी है और मैं कॉलेज 37वीं के 10वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। जाके सुमिरन ते रिपुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। क्या आज रामायण हमारे लिए प्रासंगिक है? हाँ है। रामायण का हर मूल्य आज भी हमारे लिए अत्यंत प्रेरणादायक है। आइए इस बात को श्री राम के छोटे भाई शत्रुघ्न जी के चरित्र से जानें, जिनके नाम के स्मरण से ही सारे शत्रु नष्ट हो जाते हैं। हमारी पारिवारिक स्थितियों में यदि हम शत्रुघ्न जी की तरह आचरण करें तो अपना और अपनों का जीवन अति सुंदर बन जाए। जो आगे सामने दिखता है वही कार्य करता है, ऐसा नहीं। एक भव्य, सुंदर, विशाल मंदिर है। मंदिर खड़ा है क्योंकि नींव के कुछ पत्थरों ने अपने आप को धरती में गाड़ लिया है। वे दिखते नहीं, परंतु उनके कारण मंदिर खड़ा है। शत्रुघ्न जी दिखते नहीं, परंतु उनके कारण राम कथा का भव्य मंदिर खड़ा है। 2 भाई वनवास में हैं। भरत जी नंदीग्राम में हैं तपस्या करते हुए, और 14 वर्षों तक शत्रुघ्न जी को ही अयोध्या को संभालना है। 14 वर्षों तक। अयोध्या की कई चुनौतियां हैं, राजधानी का संरक्षण भी और राजमहल में परिवार भी। रात दिन कौशल्या माता दुखी हैं और रात दिन कैकेयी माता अंतःकरण में जल रही हैं कि मैंने कितना बड़ा अपराध कर दिया। श्री राम ने शत्रुघ्न जी से कहा था, तुम्हें मेरी और सीता की शपथ है, 14 वर्षों में अयोध्या में कैकेयी माता के विरोध में एक भी स्वर नहीं उठना चाहिए। यह देखना तुम्हारा दायित्व है। शत्रुघ्न जी और उनकी पत्नी श्रुतकीर्ति को संभालना है मांडवी भाभी को, जिनके पति भरत जी समीप ही नंदीग्राम में हैं, परंतु वे 14 वर्षों तक उनसे मिलने नहीं जा सकती। उन्हें मनोभाव संभालने हैं उर्मिला भाभी के, जिनका एक ही कहना था कि लक्ष्मण जी को जाना था तो एक बार मिलकर तो जाते। मित्रों, कोई मनुष्य सेनाओं से तो लड़ ले, परंतु अपनों के मनोभाव संभालना तो कोई शत्रुघ्न जी से ही सीखे। बाहर राजनैतिक चुनौतियाँ और घर के भीतर ये सारी बातें। ऐसे में अयोध्या की नाव को डगमगाने नहीं दिया शत्रुघ्न जी ने। अयोध्या टिकी तो केवल शत्रुघ्न कुमार के त्याग और परिश्रम के कारण टिकी। यही नहीं, अयोध्या की संपत्ति को भी 10 गुना बढ़ा दिया उन्होंने। मित्रों, हमें भी हर हाल में पुरुषार्थ तो करते ही रहना चाहिए, शत्रुघ्न जी की तरह। राम जी लौटकर आए तब भरत जी उन्हें अयोध्या का सारा लेखा जोखा दे पाए, वह केवल शत्रुघ्न जी के कारण। सारा जीवन गंवाकर भी उनका यही लक्ष्य रहा कि मेरे दोनों भाइयों का प्रण पूरा हो। धर्म की, कर्तव्य की रक्षा होनी चाहिए, यह सीख मिलती है हमें शत्रुघ्न जी के निस्वार्थ जीवन से। कठिन परिस्थितियों में परिवार को किस प्रकार संभाल कर रखा जाए, इसका कितना ऊंचा आदर्श है वे। शत्रुघ्न जी के चरित्र का चिंतन करते हैं
तो हमारे भीतर के विकारों का, हमारे सबसे बड़े शत्रु अहंकार तक का नाश ही हो जाता है। शत्रुघ्न जी की तरह हम भी हमारे चरित्र को निस्वार्थ और उज्ज्वल बनाए। जाके सुमिरन ते रिपुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। जय सिया राम। जिमि अमोघ रघुपति कर बाणा, ए ही भांति चले हनुमाना। क्या आज भी रामायण से हम कुछ सीख सकते हैं? हाँ, रामायण के हर पात्र से हम आज भी बहुत कुछ सीख अपने जीवन को अति सुंदर बना सकते हैं। आइए देखें रामदूत हनुमान जी के चरित्र से। नमस्कार, मेरा नाम जिया मोरारजी है और मैं 17 साल की लोरेटो कॉलेज कैटरबॉर्न की 13वीं कक्षा की छात्रा हूँ। हम अधिकतर हनुमान जी को केवल बल का देवता मानते हैं, परंतु बुद्धिमताम वरिष्ठम हनुमान जी की तरह यदि कोई भी युवक या छात्र गहरा चिंतन करे तो उसका जीवन अति उज्ज्वल हो जाए। चलिए हनुमान जी के चिंतन का चिंतन करें। लंका में सर्वत्र खोजने पर भी जब सीता माता नहीं मिली, तब हनुमान जी विचार करते हैं, क्या हुआ होगा माता का? अब मुझे क्या करना चाहिए? यदि मैं माता के समाचार लिए बिना श्री राम जी के पास लौटा तो वे तो अपने प्राण ही त्याग देंगे। क्या मैं यहीं तपस्वी बनकर रह जाऊं या चिता में मैं अपने प्राण दे दूं? फिर वो सोचते हैं, नहीं नहीं, कुछ भी हो जाए, मुझे कितना भी संकट झेलना पड़े, मैं कभी भी आत्महत्या नहीं करूंगा। जीवन है तो कोई ना कोई उपाय निकल ही आएगा। मित्रों, यह निश्चय हर युवक को धारण करना चाहिए। हम देखते हैं कई नवयुवक थोड़ी भी प्रतिकूलता झेल नहीं पाते। वे निराश हो जाते हैं और अनेक बार गलत कदम उठा बैठते हैं। फिर हनुमान जी ने आगे चिंतन किया, लौटकर मैं जा सकता नहीं, मरना मुझे है नहीं। हाँ, एक काम कर सकता हूं, इस रावण को ही उठा ले जाता हूं, उसे श्री राम जी के चरणों में पटकूंगा और उनसे कहूंगा, पूछे इस पापी से सीता माता कहाँ है। लेकिन फिर उनके ध्यान में एक बात आई कि मैंने तो अपने कार्य से पूर्व देवताओं की सहायता नहीं मांगी। एक बार फिर प्रयास करता हूं माता को ढूंढने का। तो अब की बार हनुमान जी ने प्रार्थना कर जो छलांग लगाई तो वह अपने आप ही उन्हें अशोक वाटिका तक ले गई और उन्हें माता के दर्शन हुए। मित्रों, हनुमान जी की तरह हमें भी रोज अपने भगवान जी को, माता पिता को प्रणाम कर अपना कार्य आरंभ करना चाहिए। इससे देवता हमारी बुद्धि में वह प्रकाश भर देते हैं कि हमारा हर कार्य सफल हो जाता है और हमारा हर निर्णय सही हो जाता है। आगे अत्यंत ही दुखी सीता जी को देख हनुमान जी सोचते हैं, मैं माता से कैसे मिलूं, उनसे कौन सी भाषा में बात करूं? यदि मैं संस्कृत में बोलूंगा तो वे तो मुझे रावण ही समझ बैठेंगे। वानरों की भाषा वे समझेंगी नहीं। हाँ, उनकी प्रिय अयोध्या की बोली बोलता हूं और वे वृक्ष पे बैठे बैठे राम कथा कहना आरंभ करते हैं। क्या आप जानते हैं संसार की सबसे पहली राम कथा कहाँ कही गई थी? लंका में। वक्ता कौन है? हनुमान जी। और श्रोता कौन है? जानकी माता। इस प्रकार हनुमान जी ने डरी हुई सीता जी का मनोभाव बदला और उनका विश्वास जीता। यह कितनी बड़ी सीख है हमारे लिए। किस प्रकार सही और गहरे चिंतन से सही निर्णय लिया जा सकता है। किस प्रकार सही ढंग से बात कर किसी का विश्वास जीत उसे प्रेरित किया जा सकता है। किस प्रकार प्रतिकूल समय में स्वयं का मनोबल बढ़ाकर श्री राम जी के अचूक बाण की तरह अपना लक्ष्य पाया जा सकता है।
जिमि अमोघ रघुपति कर बाणा, एहि भांति चलेउ हनुमाना। जय श्री राम। यदि आपकी दिशा सही है तो देर से पहुंचना भी जीत कहलाती है। श्रद्धेय निर्णायक गण, विशिष्ट जन और मेरे उत्साही साथियों, आज का युवक तेज तो बहुत दौड़ रहा है, पर प्रश्न यह उठता है, किस दिशा में दौड़ रहा है? कभी प्रसिद्धि के पीछे, कभी दिखावा के पीछे, तो कभी उस अंधकार के पीछे जो भीतर से छिपा हुआ है। हमें यह स्वीकारना परम वांछनीय है कि आधुनिक काल के युवक युवतियां संभावनाओं से भरपूर है, पर यदि अगर जीवन के मूल्यों से वंचित किया जाए तो वही शक्ति पतन की ओर धकेलती है। और ऐसे समय में अगर कोई ग्रंथ आदर्श चरित्र मार्गदर्शन कर सकता है तो वह है रामायण। और इसी से जुड़ा है आज का विषय। नवजवानों के लिए रामायण की प्रासंगिकता। सर्वप्रथम आप स्मरण कीजिए अयोध्या कांड को। रानी कैकेयी के 2 वरदानों के कारण ही राजा दशरथ मूर्छित हो गए। श्री राम, जिनका राज्याभिषेक होने वाला था, जिनका अभी अभी विवाह हुआ था, जिनके पिता मूर्छित पड़ गए, उन्हें केवल कहा गया वन जाओ। अकाट्य तथ्य है कि प्रभु श्री राम ने न कोई प्रतिवाद किया और बिना क्रोध से शांत भाव से वन की ओर प्रस्थान किया। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। आज के युवक युवतियां जीवन में थोड़ी सी परेशानियों का सामना करने पर भी वे राह बदलते हैं, और तभी प्रभु श्री राम हमें यह सिखाते हैं कि कर्तव्य केवल कहने से नहीं, सहने से होता है। ध्यातव्य है कि लक्ष्मण और शबरी में समर्पण और त्याग कूद कूद कर भरी हुई है। इसी प्रकार ही आज के युवक युवतियों इसी मानसिकता को अपने शैक्षिक विकास को लेकर पूर्ण रूप से लीन होना परम वांछनीय है। किसी भी तरह की आलस्य से कोसों दूर रहना परम वांछनीय है। और जब वे जीवन में सफल होंगे तब उनके लिए यह सोने पे सुहागा वाली बात है। धीरे तो सही पर लक्ष्य तय है। आखिरकार शूर्पणखा और मंथरा युवाओं को संगति पर विचार विमर्श करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, क्योंकि एक गलत संगति, एक विषैली सोच समस्त वंश को समाप्त कर देता है। इसलिए हमें सब कुछ करना है अत्यंत
गहराई से सोचने का ढंग अपनाना चाहिए। निष्कर्षतः राम को पूजना आसान है, परंतु राम को जीना कठिन है। आइए आज से अगर हम राम की तरह जीना सीखें तो एक नहीं अनेक राम जन्म लेंगे। धन्यवाद।